Hello, Namaskar, and welcome to the channel Smart Learners by Kamna Agarwal. Today, we are going to discuss and explain and study and understand and clear the concept of NCERT CBSE syllabus, Class 8, Chapter number 1, Crop Production and its Management. In this very particular topic, this is the very first chapter of the class 8. In this particular topic, we would be discussing what are the different agricultural practices and what are the steps involved and why it is the important to produce and increase the crop. Right? तो इस टॉपिक को समझने के लिए you need to stick to the channel till the end. And yes, as the channel says, clear your concepts. So after that, you have to clear your concept by attempting a brainstorming test also. So please stick to the end, and thank you for all those viewers and subscribers who continuously give away their suggestions to improve. So thank you and welcome for that. Let's go with the first topic, that is, why do we need food, right? So let's start our today's chapter, that is crop production and management. This is the very first lesson of class 8 NCERT textbook. So before starting this chapter, let's discuss about what we are going to study in this chapter. What are learning objectives? है ना, सबसे पहले we have to learn the different kind of crops. ठीक है, कौन-कौन सी crops होती हैं, right? And why do we do the agricultural practices? हम क्यों agricultural practices करते हैं या agricultural practices होती क्या हैं, right? Okay. अब let's talk about the very first important thing, है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे कि why the agriculture is done, crop का production क्यों होता है ना? तो first important चीज यहाँ पे आ जाती है, that is energy के लिए. So how do we get energy? Energy is very important and it acts as a fuel for our living bodies, है ना? तो हमारी body के लिए energy जो है एक fuel का काम करती है, और ये fuel हमें किस form में मिलता है? Food के form में, right? And this food is available to us from the plants or the animals. या मैं कहूँ directly या indirectly, animals and we human beings are dependent on the plants only. राइट? अब जब हम बात करते हैं कि कैसे, तो प्लांट्स क्या है, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स भी, राइट? तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? द प्लांट्स दे कैन मेक देयर फूड सेल्फ, है ना? बाय व्हाट प्रोसेस? बाय फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना? स्टार्च के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में ये प्रोड्यूस करते हैं, राइट? अब ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. यानी कि ओनली द प्लांट हैज दिस एबिलिटी टू यूज कार्बन, हाइड्रोजन एंड water and the sunlight and fix this all ingredients into a chemical energy, that is food, है ना? एक chemical energy में change करने की, that is food, and then that food is available to our body as fuel to provide energy. Okay, now second important thing is, okay, कि what is agriculture, है ना? तो agriculture होता क्या है? तभी तो हम पढ़ेंगे कि what are the practices या what are the steps involved in agriculture. तो हम agriculture क्यों करते हैं? पहले तुमने कहा plants हमने उगा लिया, okay, अब कैसे उगाते हैं? agriculture की help से. तो if I have to break this down, that is ager and culture. तो agriculture word जो है Latin भाषा से लिया हुआ है, Latin language से, जिसमें ager का मतलब होता है a field, right? And cultura, next word है cultura. तो cultura का मतलब होता है to grow या फिर to cultivate. So if I combinedly say these two words together, कि cultivating या growing something in a field, so that is called agriculture. So I would be no wrong, right?
अब माय थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कम्स, है ना, मेरी तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज आती है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, कि अच्छा एग्रीकल्चर होता है भाई फील्ड को ग्रो करना, ठीक है। अब हम फील्ड को क्यों ग्रो करते हैं? एनर्जी के लिए, है ना। तो अब ये एनर्जी भी क्या होगा, हमको कैसे मिलेगी? बाय द क्रॉप्स। तो बिफोर एंशियंट, बिफोर मेनी इयर्स अगो, या आई वुड से इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में हम लोगों को क्या कहते थे? नोमैडिक्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स थे दे वर नोमैडिक्स। दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। क्यों घूमते रहते थे? इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ शेल्टर, है ना। तो फूड एंड शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन द लाइफ, है ना। बट वंस द मैन लर्न डूइंग द एग्रीकल्चर, है ना, एक बार उसको एग्रीकल्चर करना आ गया, तो ही वाज कैपेबल इनफ टू प्रोड्यूस द फूड एंड अरेंज द फूड फॉर हिमसेल्फ। तो अपने लिए वो खेती करके खाना बनाने लगा। तो दैट्स हाउ देन धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ठीक है हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बट व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों करें, है ना, या हम क्यों इतनी डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाएं, हम क्यों अलग अलग खेती करें, अलग अलग फसल उगाएं, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि एवरी ईयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, है ना, बट द लैंड इज नॉट इंक्रीजिंग। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर क्या हमारी लैंड पीस बढ़ रहा है? नो। तो लैंड जो है इट इज नॉट इंक्रीजिंग, जमीन तो उतनी ही है। So that is why we have to shift to a method where we can make the maximum use from the same piece of land. तो हमें ऐसी practices या ऐसे steps या ऐसे management की जरूरत है कि हम उतनी ही जमीन के ऊपर इस तरीके से खेती करें, the way we produce food crops या कैश क्रॉप्स इस तरीके से उगाएं कि जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी पूरी जो फूड डिमांड्स हैं उनको हम मीट अप कर सके, राइट। ओके, सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स व्हिच वी हैव कंक्लूडेड टिल नाउ? कि वी प्रोड्यूस क्रॉप्स टू गेट द एनर्जी बिकॉज इट इज अ फूड सोर्स फॉर अस, राइट। एग्रीकल्चर, वी डू द एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस these crops, right? Then this agriculture only, it has brought the stability in our life by providing food, right? And we have to increase the production by doing agriculture so that we can meet up the food demands by the increasing population. Okay, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, क्रॉप क्रॉप क्रॉप। तो व्हाट इज अ क्रॉप? तो अगर मैं आपको कहती हूँ, अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हो, फिर वॉकिंग ऑन अ रोड या ड्राइविंग थ्रू अ रोड, या फिर आप कहीं आसपास से जा रहे हो, ग्राउंड्स में देख रहे हो, तो वहां पे डिफरेंट तरीके के अलग अलग पेड़ पौधे हो गए हैं या जंगली घास हो गए, वाइल्ड ग्रास इज ग्रोन ओवर देयर, ठीक है। क्या आप कहोगे ओ यहाँ तो खेत में ये खेत है, या फिर यहाँ पे फसल उगी हुई है ना, रोड के साइड पे बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं आपको, तो आप उसको कहोगे कि यहाँ तो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है? नो, यू विल नॉट कॉल्ड अ क्रॉप। क्यों? क्योंकि मैं क्रॉप तभी बोलूंगी जब मैं सेम काइंड ऑफ प्लांट, यानी कि व्हेन आई विल बी ग्रोइंग सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही तरीके के प्लांट को एक स्पेसिफिक जगह पे उगाऊंगी, यानी कि स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड पे, इफ आई एम गोइंग टू ग्रो दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट इन अ ह्यूज नंबर, इन अ लार्ज नंबर, है ना। तो लार्ज नंबर या लार्ज स्केल पे ग्रो करूंगी, एंड दैट इवन फॉर अ पर्पस, और मैं एक पर्पस के तहत ग्रो करूंगी। पर्पस यानी कि either I wanted to grow it as for my food supply, right? या मैं उसको ग्रो करूंगी to sell in the market to get some profit, right? तो how would I describe a crop then? तो मैं एक crop को कैसे describe करूंगी कि when we grow the same kind of plants on a specific piece of land on a large scale and for a purpose, ठीक है, तो then I'll be calling it as a crop, राइट। अगर मैं आपसे नॉर्मली क्रॉप के एग्जांपल पूछती हूँ तो आप क्या कहोगे? कौन कौन सी फसल होती है? क्रॉप मीन्स फसल। तो कौन कौन सी फसल होती है? तो हम किसकी खेती करते हैं? हम व्हीट की खेती करते हैं, वी ग्रो मेज, वी ग्रो ऑयल क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स या शुगर क्रॉप्स, है ना। या फिर हम ऐसे प्लांटेशन क्रॉप्स के भी ग्रो करते हैं जिनसे हमको लाइक प्रॉफिट मिलता है ना। तो अगर अब मैं यहाँ डिवाइड करूंगी क्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, है ना, तो यूज के बेसिस पे अगर मुझे डिवाइड करना है तो हाउ कैन आई डिवाइड इट एज? आई कैन डिवाइड इट एज सीरियल क्रॉप्स,
सिरिल क्रॉप्स मेरे कौन से होंगे, जो मुझको अनाज देते हैं, ठीक है, जैसे पैडी हो गया, राइट, व्हीट हो गया, ठीक है, या फिर मिलेट्स हो गए, ओट्स हो गया, ग्राम्स हो गए, पल्सेस हो गई, है ना, ये हमारे किस में आ जाएंगे, सिरिल क्रॉप्स में, राइट। अब वैसे ही मैं बात करूंगी पल्सेस में, तो पल्सेस जितनी भी आपकी दालें वगैरह हैं, ठीक है, जैसे बीन्स है, ग्राम्स है, पीज है, चिक पीज है, लेंटल्स है, तो दीज आर ऑल लाइक ना एग्जाम्पल्स ऑफ द पल्सेस, राइट। अब थर्ड काइंड ऑफ क्रॉप, अगर ऑन द बेसिस ऑफ यूज इफ आई हैव टू लाइक categorized, it would be oil crops. As the name suggests, ऑयल मतलब जिनसे हमें तेल मिलता है, तो जैसे सनफ्लावर हो गया, या ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, या फिर मस्टर्ड हो गया, तो ये हमारे कैसे एग्जाम्पल हैं, ये हमारे हैं ऑयल क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, इफ आई हैव टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर क्रॉप्स, तो शुगर क्रॉप्स जिनसे हमको शुगर मिलता है ना, तो कौन से हो जाएंगे शुगर क्रॉप्स में, आपके शुगर केन आ गया, राइट, आपके बीट रूट आ गया, तो ये कैसी क्रॉप्स हैं, शुगर क्रॉप्स। ओके, नाउ और कौन सी क्रॉप हो सकती है यूज के बेसिस पे, फाइबर क्रॉप्स, तो फाइबर क्रॉप्स कौन सी होंगी, जैसे नाम बता रहे फाइबर्स, जिससे हमको थ्रेड या हम उनसे कोई फाइबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया, है ना, या फिर सन हेम्प हो गया, तो ये हमारी कैसे होगी, जूट हो गया, तो ये कैसे हो गए जिनसे हमको फाइबर्स मिलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रॉप है, दैट इज आर प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप, या फिर मैं इसको कहूंगी कैश क्रॉप्स, है ना, तो कैश क्रॉप्स या प्लांटेशन क्रॉप्स बेटा वो होती हैं जिसमें हम इनको सेल आउट करते हैं मार्केट में टू गेट द प्रॉफिट, है ना। और ये क्या है, ऐसी क्रॉप्स में हमारे कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, कोकोनट, जैसे नाम बता रहा है कैश क्रॉप, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ कैश, राइट। ओके, तो कोकोनट आ गया, राइट। देन इसके बाद क्या आ गया, रबर आ गया, देन इसके बाद कॉफी आ गया, टी आ गया, तो ये इनका मेन पर्पस होता है क्योंकि ये इनको डायरेक्टली हम एज अ फूड में कंजप्शन नहीं करते हैं कि जो हमारे डेली पर्पस के लिए फूड क्रॉप्स की तरफ ग्रो कर रहे हैं, राइट, है ना, नो। तो हम इनको कहाँ ग्रो यूज करते हैं, फॉर सेलिंग इन द मार्केट एंड टू गेट सम प्रॉफिट, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी कैन लाइक डिस्टिंग्विश, सिरियल क्रॉप्स जिनको हम फूड क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, पल्सेस, oil crops, right, we also call them the food crops only क्योंकि हम as a purpose of food ही यूज करते हैं, तेल वगैरह जिनसे हम निकालते हैं, राइट, शुगर हो गया। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन सी, प्लांटेशन या कैश क्रॉप, जिनको हम सेल आउट करते हैं एंड वी गेट आवर प्रॉफिट्स, राइट। ओके, फाइन, तो आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर कि व्हाट इज अ क्रॉप and on the basis of uses how many types of crops are there, right. Up now next, the very important thing which comes to our mind is कि हमने एक यूज के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, अब हम किसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, विल बी डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि व्हाट आर द सीजन बेस्ड क्रॉप्स, है ना, कि सीजन के बेस पे क्या क्रॉप्स होंगी, तो कौन सी क्रॉप्स होंगी जिनको हम सीजन के बेस पे करेंगे, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यस, तो सीजन के बेस पे कौन सी क्रॉप्स होंगी, देयर आर ऑन द बेसिस द सीजन इन इंडिया वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो जैसे इंडिया में जो सीजन चलता है तो उसके बेसिस पे हम 3 तरीके के सीजनल क्रॉप्स लेते हैं। एक क्रॉप होती है जिसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप होती है मेरी जो कि मैं इनको 100 करूंगी, यानी कि बीज बोऊंगी जून एंड जुलाई में, है ना, राइट, और मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूंगी सितंबर या अक्टूबर में, तो इस मंथ तक ये फसल पक के तैयार हो जाती है, और इसी खरीफ क्रॉप को ही हम रेनी सीजन क्रॉप्स या मॉनसून सीजन क्रॉप्स भी कह देते हैं। व्हाई, बिकॉज दीज इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स जो है, दे नीड लॉट ऑफ वाटर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इनको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, एंड दैट रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय द रेन ओनली, है ना, तो रेनी सीजन में हम इनको यूजुअली ज्यादा ग्रो करते हैं। ओके, क्योंकि वो हमारा मॉनसून सीजन होता है जून जुलाई, ऑटोमेटिकली बारिश बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, राइट। तो अब इनके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, पैडी, चावल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ माय सम खरीफ क्रॉप्स, राइट। ओके, सेकेंड क्रॉप्स होती है मेरी विंटर क्रॉप्स, ठीक है, कौन सी क्रॉप्स होंगी, विंटर क्रॉप्स।
जो कि मेरे कौन से मंथ में हम सोइंग करेंगे, विल बी सोइंग, सोइंग यानी बीज बोना। तो बीज बोएंगे हम इसका अक्टूबर एंड नवंबर में, है ना, अक्टूबर में नवंबर तक हम इनको सोइंग करते हैं। देन आफ्टर दैट इन मार्च एंड अप्रैल वी डू द हार्वेस्टिंग। तो इनको मार्च एंड अप्रैल तक ये प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं, मेच्योर हो जाती हैं एंड दे आर रेडी टू कट, है ना, तो पककर तैयार हो जाती हैं, है ना। एंड फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, गेहूं, wheat, gram, pea, mustard and linseed. They are the examples of my rabi crops. ठीक है। अब next very important third type of crop is Z crop. Please pay attention here. That is Z crops. अब जो Z crop मेरी जो होती है, ये थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप है जो कि सीजन के बेस्ड पे है, और ये हम इसको ग्रो करते हैं। जो इसका सीजन होता है दैट इज बिटवीन मार्च एंड जून। तो ये बीच की क्रॉप्स होती हैं। बीच की क्रॉप्स यानी कि जो बीच का मेरा सीजन होता है, सर्दी एंड गर्मी के बीच का जो सीजन है दैट इज मार्च एंड जून। इसमें हम इसको ग्रो करते हैं एंड उसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, यानी कि मार्च तक ये ग्रो सोइंग हो जाती है इनकी, एंड जून में भी हार्वेस्ट दीज क्रॉप्स, है ना। और इनको यूजुअली हम सीजनल क्रॉप्स भी बोल देते हैं। ज़ैद क्रॉप्स को भी कॉल इट अ सीजन क्रॉप्स ऑल्सो, क्योंकि जितने भी हमारे ये वेजिटेबल्स हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, ठीक है, या भिंडी है, राइट, लेडी फिंगर है, या फिर आपके फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ठीक है, तो या कुकुम्बर है, तो ये सारे के सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ग्रो ड्यूरिंग द मार्च एंड जून time period, and they are known as the Z crop. So these are on the basis of seasons. The crops are three types: Kharif, Zaid, and Rabi. Now next thing comes why we cultivate the land. So why we cultivate the land? To meet the food purpose, yeah, food requirement of the increasing population, and to increase that particular crop production on a particular piece of land by using वाइज मेथड्स या फिर मॉडर्न टेक्निक मेथड्स, है ना। तो अब इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है कि व्हाट इज क्रॉप, व्हाट आर द डिफरेंशिएशन ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, कि कौन सी वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि स्टेप्स, कौन सी वो स्टेप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि खेती करने के लिए या किसी क्रॉप का प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, है ना। तो देयर आर द डिफरेंट 7 स्टेप्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इन्हीं छोटे छोटे सब टॉपिक में से ही आ जाते हैं। वी नीड टू clear our concept very nicely. So what is the first step? The first step क्या है? Preparation of soil. That is soil को तैयार करना, prepare करना, ready करना, so that we can put the seeds in them, right? Second क्या है? Second is sowing. कि how we have to select the good quality of the seeds, right? And how we have to put the seeds in the soil. और हमको वो soil में seeds कैसे डालने हैं, ठीक है। थर्ड है एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि हम मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करें। नेक्स्ट है इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि पानी देना। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, यानी कि जो जंगली पेड़ पौधे हैं जो कि कंपटीशन में आ जाते हैं हमारे मेन क्रॉप्स के, उनसे प्रोटेक्ट करना। देन हार्वेस्टिंग व्हेन द क्रॉप्स मैच्योर, देन कटिंग ऑफ दोस क्रॉप्स एंड देन properly storing them and supplying them to the market finally, है ना। तो these are the different steps which are involved in the agricultural practices. So children, now let's